Good morning, good afternoon, good evening to every one of you, those who are joining in my live session. A very warm welcome. Hi everyone. Thank you. Oh, yes, thank you so much. I'm good. How are you doing? So, we are again back with another round of conversations with the author and with another author live interview. So, let me not waste time and quickly send an invitee to our today's guest and today's author so that we can start with the session. So, hi everyone. Thank you all for joining in and always keeping me motivated. So, I'm just saying, I hope you all had a lovely Navratri season and Garba enjoyment, and wish you all today a very happy Sharad Purnima. So yes, just waiting for the author. Hmm. So we are here, we are live, and oh, ma'am is joined here. Ma'am, are you there? Can you join the session so that we can start with our live? So, what are your plans, everyone, for Sharad Purnima? Okay, yes. Hi, thank you. You too. Good evening. So, I've sent a request to you, ma'am. If you can also send me a request. You will get an option request to join. So, you can send me an invitee from your end too. So, please accept the request, ma'am. In case you are unable to, you can send me an invitee from your end. Okay. So, yes. Ma'am, are you able to accept the request? Maybe some glitches. So, just hold on and let us wait. Here we are. Okay. Hello, Sat Shri Akal, ma'am. So कैसे good to see you. हैं आप सब? बढ़िया. Good evening, ma'am. Welcome to the Thank show. you so much, We are Tanvi. Thank you matching so much. matching. एक्चुअली अभी प्रॉब्लम है ना, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है. कोई बात नहीं मैम, पूरा शो हमारा है, जब तक टाइम है लगे रहिए, कोई बात नहीं. हम आज मैचिंग मैचिंग है दोनों. ओ, लेकिन तुम्हारी फोटो में तुमको नहीं देख पा रही हूँ इस टाइम. मे बी मैम आपके यहाँ शायद कोई नेटवर्क इशू हो, मुझे आप क्लियर दिखाई दे रहे हो. चल, कोई बात नहीं. अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके मैम. अगर आपको आप कट करके वापस भी ज्वाइन कर सकते हो इन केस अगर आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ तो. तो ऐसा करते दोबारा एक बार ट्राई करते हैं. हाँ श्योर, मैं यहीं पे ही हूँ, लाइव ही बैठी हूँ मैं. आप एक बार हाँ, कट ठीक. कीजिए, वापस ज्वाइन कीजिए. ओके मैम. ओके ओके, ओके. ओके. यस मैम. So yes, viewers, such things happen during the session. We need to be, always on our toes, on our heels. So no issues. Nowadays, a lot of Instagram updates and glitches are going on. So the author will be there with us soon. So just hold on your hands and take a deep breath so that the author will be there again. I've sent an invitee. So let's see, this time it works out and we can roll on. Okay. Now it's visible, ma'am? नहीं. नहीं है, शायद कोई नेटवर्क इशू होगा. मैम आपका जो कैमरा है ना उसे टर्न कर दीजिए. योर पिक इज टिल्टेड. और हाँ, मैं देखती हूँ. ऐसे हाँ आएगा. यस. यस करेक्ट करेक्ट. अभी ठीक है. यस मैम, करेक्ट करेक्ट, डन. लेकिन आई तुम्हारी कैन सी फोटो यू. आनी चाहिए थी, तनवीन.
मैं आपको एकदम क्लियरली देख पा रही हूँ, दैट ग्रीन बैकग्राउंड, वाइट ड्रेस एंड दैट Oh, ईयरफोन्स एवरीथिंग। thank you, thank you. Okay, ma'am. Welcome to the show of conversation rounds with the author. एक बार आप पहले कैमरा सेट कर लीजिए आराम से, कोई बात नहीं। हाँ जी। बड़ा मुश्किल लगता है मुझे तो। नहीं नहीं, बड़ा आसान है। एक बार सेट हो गया तो फिर तो हमारा ही प्लेटफॉर्म है, हमने सिर्फ बातें करनी है बस। हाँ, ये बात तो है। चलो करेक्ट। देखते हैं, कोशिश करते हैं कैमरा सेट करने की। हो जाएगा, कोई नहीं है ना, हम यहीं बैठे हैं आराम से। हाँ जी, हाँ जी। और मैम कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम लाइव सेशन? मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा कि मैं इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा टाइम आएगा नहीं सोचा था। अनबिलीवेबल है मेरे लिए। सब टाइम है ना, फर्स्ट टाइम कभी कभी जब कोई चीज होती है ना तो बहुत बड़ा ही अलग और अनोखा लगता है, बट हाँ उसका एक्सपीरियंस भी सबसे अलग होता है। हाँ, वो बात है, लेकिन मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी, कभी ड्रीम नहीं था ये सब का, जो आज मेरे साथ हो रहा है। एवरीथिंग कम्स फॉर द हाँ, बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, तुम जैसे बच्चे से मिली, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत प्यार तुमसे जब से मतलब बातचीत शुरू हुई है, बहुत प्यार मिला है, बहुत अपनापन मिला है। तो वो मुझे लगता है कि शायद इस जनरेशन में बहुत ज्यादा है। लाइकवाइज मैम, आपके थ्रू भी सेम वैसे ही मिला है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू। So viewers, today we are having in front of us author Meenu Kaur, the author of the book नमस्ते। Midhua. नमस्ते So here is आप the सबको book. मेरी। Yes, ये बुक मेरे सामने है, आप देखिए मिधुआ। मुझे फाइनली मिल गई आपकी बुक। ओह ग्रेट। मुझे लग रहा था मुझे ही दिखानी पड़ेगी। No, I got it search करते करते। Okay, so you know friends, before we go further, we discuss about the book. हम बुक के बारे में और देखें, बुक में क्या है, बुक के अंदर क्या है, मैम की लाइफ जर्नी, ऑथर जर्नी, इन सब के बारे में हम आगे बढ़े। इससे पहले मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द व्यूअर्स। मेरा इंट्रोडक्शन खास नहीं, मैं आप सब जैसी ही हूँ। मेरा नाम मीनू है, और मतलब ये मैंने लिखी नहीं है, ना ही मेरा थॉट कुछ था इसमें। ये मुझे ईश्वर ने मेरी झोली में खुद ही डाल दी है कि ये मिलना है तुझे, बस। दैट्स सो स्वीट मैम। क्योंकि नहीं कभी, क्योंकि बुक्स, सीरियसली बताऊं तो बुक्स मुझे कभी पसंद नहीं थी पढ़ना। ये क्यों लिखा मैंने, मुझे खुद को नहीं पता। तो फिर जब ये लिखा तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर जो आपके भाग में होता है वो आपको झोली में डाल ही देता है, ना चाहते हुए भी आपके। दैट इज रियली ट्रू, बट ये जो बुक मैम ने लिखी है ना, इसमें बहुत छोटी छोटी मैम ने पोएम्स, पंक्तियां लिखी हुई है बीच में, बट वो इतना दिल को छूने वाली है ना, और मीन्स लाइफ के मीनिंग आपको देखे जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस वो सिंपली आप एक पोएम पढ़ रहे हो एंड नेक्स्ट पोएम पे जा रहे हो। ईच एंड एवरी पोएम जब आप रीड करोगे, आप खुद बैठोगे और सोचोगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका हमारे जीवन से रिलेटेड अर्थ क्या है। तो ईच एंड एवरी पोएम जो है, एक जन्म से लेके तो मरने तक हमारी सिलसिला जो चलता है, आप इस बुक में मैम ने बहुत ही प्यार से अपने शब्दों में पिरो के इस बुक में वो पोएम्स के थ्रू सब कुछ लिखा है। तो मैम पहले, सबसे पहले ये बताइए, जैसे आप कह रहे थे आपको रीडिंग पसंद नहीं है, ठीक है, तो जब आप छोटे थे आप क्या बनना चाहते थे? मैं सीरियसली बताऊं, मेरा कोई सपना नहीं था, कभी नहीं रहा। मतलब मुझे लगता है शायद बच्चों के सपने होते हैं, पेरेंट्स उनको सपने देते हैं कि आप ये देखो, लेकिन जो मुझे बचपन में मिला वो आज भी है कि मुझे ईश्वर की खोज है, आज भी है। तो वो एक शिद्दत से मेरी रही है, तो इसीलिए मैंने 2 लाइन लिखी थी, इसी बुक में है, बड़ी शिद्दत से तुझे ढूंढने निकले हैं, अपना पता लेके तो खुद हाजिर होगा। यस, आई तो रिमेम्बर, वेरी गुड। तो वही है कि मतलब जैसे बचपन में बताया जाता है कि पूजा पाठ करो, सुबह उठो, गुरुद्वारे जाओ, ये सेवा करो, सबको खुश रखो। तो शुरू से उसी लाइन पे रहे हैं, और आज भी उसी लाइन पे हैं। लेकिन वही है कि ईश्वर आपको किस भाव में मिलता है वो अलग बात है। ये सही बात है, दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ मैम, हम्म, दैट्स रियली ट्रू। कहीं भी कैसे भी मिल सकता है, हम्म, बस
बोलते हैं ना, खुश रहिए, जिंदगी को एंजॉय कीजिए। बस बस हर पल वही है। तो मैम आपने लाइक कब सोचा कि मुझे ऑथर बनना है एंड बुक्स लिखना स्टार्ट करना है? मैंने कुछ नहीं सोचा, जो सच्ची बात है सब लोगों के साथ हुआ है। कोरोना पीरियड में कुछ ऐसा हो गया कि शायद दुख हर घर में था उस टाइम। तो जब आप दुखी होते हो तो या तो आप दुनिया में उतर जाते हो कि अपने आप को बिजी रखते हो, ये कर लो वो कर लो। तो लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने आप को बिजी नहीं कर पाई, तो मैं और हर टाइम अकेली रहना पसंद करती थी। तो अकेले रहने से ये हुआ कि शायद वो वर्ड्स के थ्रू मेरा दुख बांटना चाह रहा था ईश्वर, जो मुझे ऐसा लगा। तो वही वर्डिंग्स मैंने लिखती गई। फिर एकदम से ख्याल आया, किसी को मैंने देखा कि फेसबुक पे कि उसने अपनी बुक निकाली, तो वहां से देख के मुझे ख्याल आया कि जितना मैंने लिखा उसको मैं मतलब ऐसे बुक में निकाल देती हूँ। फिर ये बुक आ गई। और वाह। और आज भी मुझे ताज्जुब होता है कि मैंने लिखा है। मतलब आज भी मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं उस ईश्वर को या उस शक्ति को कुछ उसके बारे में व्याख्या कर पाऊं या उसको एक शब्द भी लिख पाऊं। बट देखिए ना मैम, कोरोना पीरियड में भले लोगों ने मतलब अपने कितने लोगों को, अपने अपनों को, सबको खोया है, बट जो अंदर से भगवान ने हमें कुछ करने की शक्ति दी है, दृढ़ निश्चय, निश्चय बोलते हैं ना, हिम्मत हाँ। जो हमें मिली है, हम्म। वो अपने आप ही जागृत हुई है। मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। हम्म। लोगों ने अपने काम शुरू किए, ऑनलाइन यूट्यूब हम्म। चैनल शुरू किए हैं, बहुत कुछ किया और आगे खड़े हुए हैं। हाँ। और हम ये भी नहीं जानते कि उनमें से ऐसे कितने लोग हैं, जितने लोगों के पीछे कोई भी नहीं है, वो सिर्फ अकेले हैं, पीड़ित है, हिम्मत करके जुट के आगे खड़े हुए हैं। सेम आपने बहुत। जो एक अपने अंदर से एक हिम्मत करके ये सब जो पोएम्स लिखी है हिंदी में, वे एक अलग ही रूप लेके आई हुई है। क्योंकि उस टाइम पे जो हमने सहा है कोविड टाइम पे, हाँ हाँ उसकी मतलब तुलना करना ये नॉर्मल जिंदगी से बहुत अलग है। एंड उस बहुत टाइम अलग है। की फीलिंग्स और बहुत डिफरेंट थी। हाँ बहुत डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं कि मैंने देखा है, मुझसे बुरे बुरे हालातों में भी लोग रहे हैं और मैंने हर पल लोगों को मतलब मैं यही देखती थी कि एक दुख है वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, वो अलग बात है ना। एक ईश्वर ने त्रासदी थी कि चलो कोरोना आ गया, लेकिन एटलीस्ट लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे। तो अग्री मैम। हाँ मेरे साथ तो खैर मतलब ऐसे लोग रहे हैं कि जिनको मैं खुदा से कम नहीं मानती हूँ। मेरा आज भी आप मानेंगे कवच है, और ऐसे कवच है जैसे आप हैं तन्वीन, वैसे ही मेरे बहुत अच्छा कवच है जो मुझे हर पल सपोर्ट करता है, हर पल। और ऐसा प्यार देता है कि जब दूसरे आपको प्यार देते हैं ना, तो वो प्यार बढ़ता है। दैट्स ट्रू मैम, ये बात तो है। हाँ आप झुकते हो, आप में नम्रता आती है, आप मतलब बिल्कुल एक भाव में बहते हो कि आपको दूसरे से प्यार मिल रहा है और उस प्यार को आप अपने अंदर और भरते हो। तो मुझे लगता है लेने वाला इतना खुशकिस्मत नहीं होता जितना देने वाले होते हैं कि दूसरे को आपने ऊंचा कर दिया थोड़ा सा प्यार देकर। हाउ स्वीट मैम, आप भी इतने स्वीट हो और आप इतना प्यार देते हो, तो बस देखिए आपको सब जगह से मिलता है नहीं, प्यार। वाकई में मुझे मिलता है। और मुझे लगता है कि आज मैं जो भी हूँ या जो भी लिख रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनमें इतना भाव है, इतना अच्छे हैं वो लोग कि उनको देख के मुझे लगता है कि मुझे ऐसा होना है, क्योंकि इंसान कभी अकेले में अच्छा हो ही नहीं सकता। अग्री, एकदम एकदम सही कहा मैम आपने। ये बात से तो टोटली अग्री करती हूँ, अगर हम अच्छे तो जग अच्छा। हाँ ये एक नॉर्मल सेइंग है। हाँ। और जग आपको फिर मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे हो ना, आपको जग 1000 गुना अच्छा होके मिलता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही मैम। तो चलिए मैम, आपकी मिदुआ की तरफ चलते हैं। हाँ सबसे जी। पहले तो मैम, जो हु इज इन सर्च ऑफ हिमसेल्फ, खुदा का हाँ इश्क, तो हाँ टाइटल एक्सप्लेन कीजिए, ये कैसे मतलब आपके माइंड में आया मिदुआ? हाँ। ये थोड़ा सा आज के सिनेरियो के लिए वियर्ड हो सकती हैं चीजें। मुझे एक्चुअली पास्ट लाइफ और जन्म मरण सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और पसंद भी है। तो जब आप कुछ परेशान होते हो, हर बंदा मतलब लाइफ में हर बंदा परेशान है, ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं दौड़ता है। तो करेक्ट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपी मैंने सुनी थी, तो मैंने उसको किया। और जब मैंने उसको किया तो ये मिडुआ नाम जो मुझे मिला वो पास्ट लाइफ से मिला। तो एकदम से मेरे
मुंह से निकला मिडुआ, और साथ में ये भी आ गया कि हु इज इन सर्च ऑफ हिमसेल्फ। तो शायद मेरा कोई ऐसा जन्म था जिसमें मैं मेल के रूप में थी और ईश्वर को या अपने आप को पाना चाह रही थी, और वो खोज मेरी कभी खत्म नहीं हुई। तो वो शायद इस जन्म में एक स्त्री के रूप में होगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पुरुष जो है वो बल है और स्त्री समर्पण है। तो हम जब भी पुरुष के रूप में आएंगे हम हमेशा ताकत पाना चाहेंगे, और हाँ जी। स्त्री हमेशा समर्पण करना चाहेगी, और जब भी समर्पण होगा तो शायद जन्म पूरा होगा आपका। जो मुक्ति और मोक्ष की बातें करते हैं वो स्त्री समर्पण के साथ ही होता है। एकदम मतलब सही कहा। ऐसा मेरा मानना है, सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना थॉट है। नहीं, बट एकदम सही कहा, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। एंड ऊपर से जो आपका कवर पिक है वो उगता सूरज, हाँ जी। वो अपने आप में ही एक अलग मिदुआ को लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। हाँ तो बस और कुछ चाहिए नहीं है। स्टार्ट ऑफ द हाँ। बुक मिदुआ, एंड अंदर जो मैम ने पोएम्स लिखी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट मैम कि आप अपनी कुछ पंक्तियां पढ़ के हमें सुनाइए। मैं एक दो सुना देती हूँ। एक तो मैंने शुरुआत में आपको सुनाई, जी हाँ मैम। है ना, मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। एक तो सुनाई थी, बड़ी शिद्दत से तुझे ढूंढने निकले हैं, बड़ी शिद्दत से तुझे ढूंढने निकले हैं, अपना पता लेकर तो खुद हाजिर होगा। और ये सच है, ईश्वर खुद हाजिर होता है जहां तक मेरा मानना है। ये बात सही है मैम, ढूंढते रहो या याद करते रहो, अपने आप हाजिर हो जाएगा। कुछ भी है, आप में किसी भी चीज को लेके, अब मैं कहती हूँ किसी को पैसा कमाना है, किसी को नाम कमाना है, वो लगन रखता है, वो दौड़ता है उसके पीछे। तो मुझे लगता है अगर मैं उसके भाव में जरा सी भी पॉइंट डेसिमल या कुछ भी आ पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जन्म के लिए। एक यस मैम, करेक्ट। हाँ, दो लाइनें और लिखी थी, गर समझाने से समझ आता, गर समझाने से समझ आता तो जिंदगी किस्मत का खेल ना होती। वाह, ये सही बात है। यही सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज। सबसे पहली बात तो मुझे ये अच्छा लगा ना कि मतलब आजकल की जनरेशन जो आजकल हिंदी साहित्य की तरफ बहुत जा रही है, हाँ जी, उनके लिए तो ये सबसे इजी है। जो फर्स्ट टाइम रीडर्स है, अगर वो भी इसे लेके रीड करेंगे तो हाँ कुछ जी, डिफिकल्टी नहीं नहीं, लगेगी। लैंग्वेज इज वेरी सिंपल और बहुत सरल लैंग्वेज मैम ने यूज की है। उसका रीजन है कि मैं किसी भी भाषा में मेरी पकड़ नहीं है। मैं सच्ची बताऊं, मतलब मैं किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इनपरफेक्ट इंसान हूँ। तो मेरी भाषा में आपको हिंदी भी मिलेगी, उर्दू भी मिलेगी, और मे भी पंजाबी मिल जाए। और इसलिए इसलिए अगर आप किसी भाषा में पकड़ बनाते हो तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो भाषा को। लेकिन मेरी भाषा एक्चुअली सब मिक्स है, आता जाता कुछ है नहीं मुझे, बस बहुत सिंपली तौर पे मैं करती हूँ। बट मैम, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, हाँ एंड वो दैट इज है। व्हाट इज विद इन यू। दैट इज व्हाट इज विद इन यू, और कुछ नहीं है। तो बस वही चीज है कि मुझे लगता है कि जितनी सादगी से मैं रह सकूं और सादगी से मतलब चल सकूं, वो मेरे लिए अच्छा है। यस, दैट्स ट्रू। एक मैम, आपने पीछे जो ये लिखी अपनी पंक्तियां जो थोड़ी डिटेल्ड वाली है, उनमें से कुछ एक आप अपने व्यूअर्स को पढ़ के सुनाइए। डिटेल्ड वाली कैसी, मतलब बड़ी जो थोड़ी बड़ी? सी बड़ी है, हाँ जी। अच्छा, ठीक मेरी है। तो सारी फेवरेट है, इसलिए मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो तो तुम्हारी बात सही है। चलिए एक देखती हूँ, जो आप रीड करें शायद आपकी और मेरी सेम हो फेवरेट। मैं भी एक्चुअली, मुझे मौत बहुत पसंद है। सच्चाई जो ये है कि मुझे मौत पे बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो डर है मौत का, और ओके। सामने सामने देखा है कि जब मौत होती है तो जो जा रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। मतलब वो करेक्ट। बयान नहीं कर पाएगा आपके सामने कि वो क्या फील कर रहा है, और जो सामने खड़े हैं वो भी परेशान है। लेकिन यस। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मुझे मौत बहुत एक खूबसूरत स्त्री की तरह लगी। तो मैं 3-4 लाइन पढ़ूंगी, उसके बाद आप बुक से पढ़ना। बैठे ख्यालों में अपने मन के साथ कि आज कुछ समझाया जाए, हर वक्त भागता है कुछ काम पकड़ाया जाए। गुफ्तगू शुरू ही हुई थी कि दस्तक हो गई, खुलते ही किवाड़ एक मूरत प्रकट हो गई। सुंदर सी प्यारी सी मनमोहनी सूरत मोह गई, गहरा सांवला रंग देख मति खो गई। पलक झपका न पाए और कुछ पूछ भी न पाए,
नैन कजरारे, माथे बिंदी लाल, बोहे त्रिशूल सी करे कमाल, कर्ण झूले सूरज चांद, बाल काले नाग समान, हिम्मत कर होश संभाला, देवी आप कौन है, किससे है मिलना, मुस्कुराती हुई अल्लड़पन से बोली, आपसे है मिलना। तो ये मौत के मामले में मैंने लिखा था और ये 2 पेज की है, तो आगे इसको आप पढ़िएगा। यस। क्योंकि ये बात मुझे तो मौत, है। हाँ मौत बहुत खूबसूरत सी लगी है, बाकी जाना कैसे है वो पता नहीं है, लेकिन एक खूबसूरती है मुझे मौत के लिए, पसंद है मुझे। बट जब आपने मैम ये सब अपनी लिखी, सब पंक्तियां लिखी एंड हम्म पूरी ये बुक कंप्लीट की, तो हम्म हाउ वाज दैट फीलिंग? मतलब आपको कैसे फील हो रहा था कि फाइनली मैंने कुछ लिखा है, अपने मन में जितने भी मेरे जज्बात है सब मैंने पेपर पे लिखे और अब कुछ टाइम बाद वो लोग पढ़ेंगे। अ, सच पूछिए तनवीन, तो मैं आज भी अपने आप को नहीं ये कह पाती कि मेरी किताब है, क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में एक ही लाइन आती है कि मैंने इतना जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। ओ। तो ये जब भी मैं कुछ लिखती हूँ, और यकीन मानो जब भी मैं लिखती हूँ, तो वो लिखने के बाद जब मैं खुद पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यार कितना अच्छा लिखवा दिया ईश्वर ने। कई बार मैं अपनी लाइंस पे मोहित होती हूँ, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं एक भी शब्द लिख पाऊँ। अगर मैं सोचने बैठूं ना कि मैं आज ये लिख लूं, तो नहीं लिख पाऊंगी। और ये बात जब उस ईश्वर की कृपा होगी, तो मतलब आप मानो मैं रात को 2:30 बजे उठ के भी लिखती हूँ, 4 बजे उठ के भी मैंने लाइंस लिखी हैं। पता नहीं, वाओ। मतलब गहरी नींद में हूँ, एकदम से मेरे दिमाग में 2-4 लाइंस आती है, उठती हूँ, मोबाइल उठाती हूँ, लिखती हूँ, फिर सो जाती हूँ, ऐसा है। तो मतलब ये मैं, हाँ मेरा वही है कि किस्मत मेरा से कोई, आप जुड़े हो हाँ बस, और क्या चाहिए। बस एंड मुझे उस आज भी बुक लगता में है कि अंदर से वो आपकी जो इमोशंस है मैम, फीलिंग्स है, हम्म ईच एंड एवरी वर्ड में आपने अपने जो पूरे जिंदगी के, कहते हैं ना, आज तक की अपनी दुख हाँ सुख सब हाँ हाँ सब इमोशन भर के डाले, खुशी गम, हाँ सब मौत हो है, या कुछ भी हो, और हाँ लेकिन सबको इस तरीके से सजा के वहां पर प्रेजेंट किया है ना कि हम्म पढ़ने वाला भी सोचेगा ये क्या है और किस बारे में लिखा है। हाँ इसलिए हम और पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इट कैन बी स्पॉइलर, तो आप लोगों को जाके ये बुक खुद देखनी पड़ेगी, वरना धीरे हम्म। धीरे 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 मैं और मैम मिलके सभी पूरी बुक पढ़ देंगे यहाँ। आप पढ़ो, मतलब जिनको शायरी का शौक है या बुक पढ़ने का शौक है उनको पसंद आएगा, बहुत सिंपल है। और फिर भी मैं यही कहूंगी कि जबरदस्ती नहीं है, जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि कभी बिना मन के कुछ मत करिएगा। अगर आपको मन है तो आप मुझे सुनिए, मन नहीं है तो मत सुनिए, और दूसरे के पद चिन्हों पे कभी मत चलिए। आपकी अपनी वाह। लाइफ है, आपके अपने रास्ते हैं, आप दूसरों को देख रहे हो सकता है आपके सपने इससे बड़े हों और आप इससे ज्यादा बड़ा कर पाओ। तो दूसरों को मत देखिए, बिल्कुल अपने मन के बहाव से चलिए और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। दैट्स रियली ट्रू एंड बहुत ही प्यारे शब्द कहे मैम आपने, और खास करके आजकल की जनरेशन और जो लोग बहुत कंफ्यूज्ड है हर चीज को लेके। लेकिन पता है मैं आज की जनरेशन से बहुत खुश हूँ। मुझे आज की जनरेशन नहीं, रियली बहुत बहुत पसंद है। अगर आप कभी आज की जनरेशन को देखो तो वो हमसे बेटर कर रही है, वो हर ट्रू। चीज मैनेज कर रही है। मतलब पेरेंट्स कहते जरूर है आज की जनरेशन बेकार है, ऐसा नहीं है। जो एनिमल्स हैं आज के, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को कहा जाता था छूना नहीं, काट लेगा, रोटी दूर से डाल दो, लेकिन आज की जनरेशन ने हम लोग को पकड़ के सिखाया है कि एनिमल्स के लिए प्यार क्या होता है। करेक्ट। यस। मतलब मैं आज की जनरेशन पे तो फिदा हूँ, सच कहिए तो। और थोड़ा बहुत तो देखिए, शुरू सतयुग से चलता चला आ रहा है, वो गलत सही आज भी चलेगा। आप कलयुग और सतयुग को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हर चीज आपके अंदर है। आप सतयुग में होना चाहते हो तो आप सच बोलो, आप कलयुग में होना चाहते हो तो आप झूठ बोलो, सब कुछ आपके अंदर है, बाहर युग में कोई परिवर्तन नहीं है। ये बात एकदम सही कही मैम, वेरी वेल सेड एंड आई टोटली अग्री। तो मैम जैसे आपने कहा था कि जैसे आप रिग्रेशन में गए थे, फिर आपके आपके मन में बहुत सारी चीजें आई थी और आपने ये बुक लिखी थी, तो हम्म मैं चाहती हूँ कि आप आज जो ये व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो बाद में ये देखे, उन्हें कुछ ऐसा मैसेज दे कि उन्हें भी लगे
कि हमें भी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, हमारे मन में भी जो है उसके बाहर हमें निकल के कुछ एक पड़ाव बढ़ाना चाहिए, मतलब वेट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा मुझे कभी रीडिंग का शौक नहीं था, राइटिंग मेरे अंदर थी ही नहीं, अपने आप आ गई। तो ऐसा कुछ एक बोलते हैं मोटिवेशनल मैसेज टू ईच एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं एक चीज कहूँ, मैं सबको डिमोटिवेट करना चाहूंगी, मैं मोटिवेट कभी नहीं करना चाहूंगी। उसका रीजन है, जहां मैं हूँ वहां आप नहीं है, जहां आप हैं वहां मैं नहीं हूँ, है ना। जी दूसरी बात, मैं बहुत सोती हूँ, तो लोग कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है जब आप कर्म बॉन्ड में हो, आप कार्मिक डेट में हो, आपको उसके थ्रू गुजरना ही गुजरना है। और जो गलत सही आप झूठ सच की बात करते हो, आपको हर रोल से निकलना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लोग सोचते हैं कि एक जन्म में हम सत्संग कर ले हम सब कुछ पार कर पाएंगे, तो नहीं। आपको हर सीढ़ी जन्म दर जन्म कंप्लीट करनी है, एक जन्म में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने मन से चलो, जहां मन बहा रहा है बहते चले जाओ, और जब बहोगे ना तो आप देखना सागर से हर हालत में मिलोगे। और जब बहते नहीं हो तो काई जमती है, आप किसी को देख के रुक गए, वो ऐसा कर रहे हैं मैं ऐसा कर लूं, नहीं। आप जो कर रहे हो, आप छोटा सा भी काम कर रहे हो, आप घर में रोटी भी बना रहे हो, चाय भी बना रहे हो, या लड़के हैं बाहर खेलने चले गए, जो आपका मन है आप करो, क्योंकि जब मन से करते हैं तो इसका मतलब वो ईश्वर का ही होता है। तो बुद्धि अपनी जगह है। बुद्धि को, मतलब मैं तो बुद्धि को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने बुद्धि को भी देखा, मन को भी देखा। कुल मिला के मैं अपने मन से थोड़ा सा नतमस्तक होती हूँ, बुद्धि से नहीं होती हूँ, क्योंकि बुद्धि तराजू में डाल देती है, हर बार डालती है। ये बात तो है सही मैम, हमारे व्यूअर्स भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। नहीं, मोटिवेट करना नहीं है। मतलब देखिए, जिंदगी एक सीढ़ी की तरह है, आप बिना पहली सीढ़ी पे कदम रखे आप ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो फेलियर आएगा, लोग आपको बोलेंगे, तब भी आपको चलना है। आप लोगों में, मुझे भी लोग कहते हैं, कई बार मुझे बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि आप बह जाते हो, भाव में बह जाते हो। तो मैं कहती हूँ वो भाव ही क्या जो बहे ना। तो भाव हमेशा बहता है, और जब बहता है तो वही समर्पण का रूप होता है, क्योंकि बहेंगे नहीं तो उस शक्ति से, उस सागर से मिलेंगे कैसे। और जब उस शक्ति का भाव रखते हैं तो दुनिया में दुनिया भर की सेलिब्रिटीज हो, जितने पैसे वाले हो, कुछ भी आप जो भी बनना चाहते हो, आपको आसानी से आपकी झोली में आता चला जाएगा। वेरी वेल सेड। जैसे आपने कहा मैम कि मन को एक जगह पे मत रोकिए, नहीं तो वो काई जैसे जमती है पानी में। तो आप ही की पंक्तियों में से मुझे एक याद आया, पेज नंबर 65 पे है, मन भटकत है हाँ, लट्टू जैसा, डार डोर खींच खींच ले ले मोहे। मोहे। ये तो है, एकदम इसीलिए। जैसे कि आपने कहा ना, तो मुझे याद आ गई वो पंक्तियां कि ये मन से जुड़ी हुई भी मैम ने इसमें लिखा हाँ, है। हाँ, मतलब मैंने देखा लोगों को ना, लोग बहुत घबराते हैं, अब मेरा मन नहीं लग रहा है, घर में नहीं बैठते हैं, इधर जाना है उधर जाना है। लेकिन आपको भटकना पड़ेगा, बिना भटकन के आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको धरती में से चुनना क्या है। आप एक जगह खड़े होके तो नहीं चुन पाओगे ना, जहाँ ये खड़े हो। बात बिल्कुल सही है। हाँ, उतना ही आपकी नजर जा रही है जहां आप खड़े हो। आप भटकोगे तो आप अच्छी चीजें या बुरी चीजें, जो भी आपकी किस्मत में है, कर्म में है, मैं बहुत मानती हूँ कर्म वगैरह, तो आपको वो मिलेगा। और एक जन्म ऐसा आता है कि जब आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, ये मान के चलिए। अगर आप इस जन्म नहीं पूरी कर पाए, कहीं ना कहीं ख्वाहिश रह गई, तो वो पूरी होगी और हर हाल में होगी। तो इसलिए कभी भी डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में लाना ही नहीं चाहिए। बस एक बार अगर आपने उसको सौंप दिया ना, जा तुझे सौंपा, तो वो फिर आपको जलवे दिखा देगा अपने रूप के। मुझे इतना पता है। सच्ची में करके कभी भी अपने आप को उसमें धारे में डाल दो, देखो फिर। अग्रीड मैम, टोटली अग्रीड विद यू, क्योंकि एक पल हमेशा हर एक की जिंदगी में ये आता है। आई टोटली अग्री विद योर वर्ड्स, योर सेंटेंसेस। जब हम कुछ बोलते हैं ना, कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा गलत होता है, हम सबसे पहले जाके किसे कोसते हैं, उसी को जाके, जो हाँ, सब कुछ कर रहा है, जो हाँ, करता धरता है, हम्म, उसी पे इतना कोसते हैं। बट ये नहीं सोचते कि उसी ने वो ये किया है नेगेटिव चीज हमारे लाइफ में, हम्म, या नेगेटिव ना कहिए, एक
सीढ़ी चढ़ने के लिए उसने हाँ हमें बोलते हैं ना, एक पड़ाव चढ़ाने के लिए एक हाँ गड्ढा खड़ा किया है कि हाँ भाई तुम रेडी हो गड्ढा रेडी करने के गड्ढा हम्म पार करने के हम्म, लिए, तो हम्म, सीढ़ी तुम चढ़ सकते हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ। अगर तुम वो बिल्कुल गड्ढा पार कर लोगे तो तुम्हें 2 3 या 5 6 सीढ़ियां भी चढ़ा दूंगा मैं। तो बस ये बिल्कुल। सोचना चाहिए। और लेकिन हम जो कोसते हैं, वो जो नेगेटिविटी लाते हैं अपने अंदर, वो ही हम्म। हमारी मोटिवेशन को, हाँ, दबा देती है, हमारे मन को बस शांत कर देती है। एक और है कि आप जिसको भी देखोगे उसका विस्तार होगा, ये तो प्रैक्टिकल है। आप आज से किसी भी टाइम शुरू कर दो। मतलब मैंने देखा है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी इनकम कम है ना, ये तो लोग कहते हैं खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है। अरे खर्चा हो रहा है क्योंकि आपको इनकम आ रही है तो आप खर्च कर रहे हो ना। तो अगर करेक्ट। इनकम नहीं आ रही होगी तो आप खर्च कैसे करोगे? पैसे खत्म हो रहे हैं, ये सोचो ही ना पैसे खत्म हो रहे हैं। ये सोचो कि बहुत पैसा आ रहा है तभी मैं खर्च कर पा रही हूँ। जब आप सोचोगे बहुत आ रहा है, तो एक हम लोगों में, पंजाबियों में एक लाइन है, गुरु ग्रंथ साहब में है शायद, बहुता कहिए बहुता होए, है ना। ये तो बहुत कहने से बहुत होता है। आप कम देखोगे तो कम ही दिखेगा, आप देख ही नहीं पाओगे ना ज्यादा। करेक्ट, वेरी वेल सेड, एकदम सुखमनी साहब की लाइन्स है, वो होता हाँ कहिए तो हाँ, होता। बस बस। तो इसीलिए मेरा सबसे यही कहना है कि आप बहुत ज्यादा देखो, आप देखो कि आप बहुत सुखी हो। किसी किसी टाइम हम हो सकते हैं डाउन हो जाते हैं, लेकिन उस डाउन में भी आप ये समझो कि बस तूने ये भाव दिया है, मैं दुखी हूँ, थोड़ा सा मैं दुखी हो लेता हूँ। रोने का मन करे तो आप खूब रो भाई, तूने रोना दिया है, मैं रोऊंगा भी ज्यादा। जब मैं खुशी ज्यादा मना सकता हूँ तो मैं रोना भी तो ज्यादा कर सकता हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड सब उसी का है, रोना, गाना, हंसना, जीना, मरना, हम्म। सब उसी का है। तो जियो, जिंदगी जब दी है तो जियो। और मैम की बुक अगर आप हाथ में ले लोगे तो फिर तो आपको सब अर्थ समझ जाएगा जो मैम समझाना चाहती है जिंदगी हम्म। का। लोग ओके। मुझसे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, अरे दुखी मत हो, ऐसा करो वैसा करो, इसका ध्यान रखो उसका ध्यान रखो। मेरा कहना है कि नहीं, दुख मिला है तो उसको भी दुखी की तरह, बिल्कुल ईश्वर को बताओ कि तूने दुख दिया है तो मैं उसको भी दुख की तरह लूंगा। मैं उसको ऐसा नहीं कि मैं दुख नहीं लेना चाहता हूँ, मैं रो रहा हूँ, क्यों नहीं भाई, तूने जो दिया मैंने उसको एक्सेप्ट किया, बस। एक्सेप्टेंस दे दो ये हर बात तो चीज को। absolutely, absolutely true, ma'am. And yes, viewers, those who are watching this, those will watch this later, I request you all, ma'am's book Midua is available on Amazon. You can go and grab your copies from there. And yes, do leave your reviews on that. Also, ma'am, I congratulate you जो आपके अभी recently songs release हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। आप व्यूअर्स सुन सकते हैं मैम के इंस्टा आईडी पे, वहां पर मैम ने स्पॉटिफाई लिंक ये सब डाली होगी। हाँ जी हाँ एंड जी। विद इन कुछ दिनों में मैं अपने स्टोरी पे भी शेयर करना स्टार्ट करूंगी, एज सुन एज मैम टैग्स मी। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये देख लो सॉन्ग भी निकल रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि ये सॉन्ग लिखूंगी गाऊंगी और उसको रिलीज करूंगी। सब अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए इस लाइफ में, तो ये बट इसलिए व्यूअर्स यू शुड गो एंड लिसन टू दैट, आपको बहुत अच्छा लगेगा रियली। थैंक यू। And ma'am, before we wrap up with this session, let us have one quick rapid fire round. ओके, है ना, लेकिन थोड़ा सा एक एंजॉयमेंट भी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जो भी आएगा एकदम से आएगा, कुछ बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं, एकदम सिंपल रहेगा। ओके, हाँ, वन वर्ड विच डिस्क्राइब्स ऑथर मीनू कौर। भरोसा। ओके, आपकी इंस्पिरेशन। अ, जितने भी लोग मेरे साथ आते हैं, जैसे यू, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मतलब दुनिया की हर सृष्टि, हर जीव और जंतु जो है, वो मेरा इंस्पिरेशन है। क्या बात है मैम, वेरी नाइस, दैट्स रियली ट्रू। ओके, सो आपका कोई भी फेवरेट जगह जो आपको पसंद हो, इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लाइन लिखी है, 3 4 लाइनें लिखी हैं। जब सुकून से तुझे बैठना आ जाए तो समझना उसकी ही गोद है। तो क्या बात है, तो मुझे सुकून से बैठना पसंद है, इधर उधर नहीं। बस उसी की जगह बस बस है। सब जगह वही है। बस बस, पूरे ब्रह्मांड की वही एक गोद है और उसी गोद में पूरा ब्रह्मांड है। वेरी नाइस मैम। सो योर फेवरेट फूड मैम। चाय। फूड नहीं खाऊंगी, चाय बहुत पसंद है।
चाय लवर वो तो मोस्टली मुझे लगता है जो देख रहे होंगे अभी सोच रहे होंगे सेशन खत्म होते थे हम चुटकी मारने जाएंगे। बिल्कुल, मतलब चाय मेरे लिए अमृत है। लोग अमृत ढूंढते हैं, मुझे लगता है अमृत मेरे लिए चाय है। ये तो है मैम, ये सही हम्म। है। ओके मैम, सो एनी वन सुपर पावर अगर आपको कभी कुछ मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे, मतलब उस सुपर पावर का, और वो सुपर पावर कौन सा होगा? वननेस, और कुछ नहीं। बस। मतलब मैं अपने में सबको देखती हूँ और सब में अपने को देखती हूँ, तो वही वननेस एक सुपर पावर मुझे पसंद है और फील करती हूँ। वाओ, दैट्स नाइस। ओके, योर फेवरेट एक्टर? अब मत पूछो। हाँ हाँ, ये तो बनेगा। नहीं, क्योंकि फेवरेट एक्टर मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ तो जो भाव मुझे आप दे देते हैं, तो ईश्वर का एक भाव आप लोग मुझे देते हैं, एक प्यार देते हैं, तो उससे बड़ी मेरे लिए इस दुनिया में चीजें नहीं, मैं नहीं मानती किसी। ओके मैम, ओके ओके। So ma'am, before we wrap up with this session, last but not the least, one punchline by author मीनू कौर। खुदा सा इश्क। वाह, ये तो सबसे बेस्ट है मैम, मुझे लगता है नेक्स्ट बुक का शायद टाइटल भी बन जाए। टाइटल मेरे पास ऑलरेडी 2 साल पहले वो दे चुका है टाइटल मुझे, लेकिन है ना, अब अब ये भी एक हाँ। बन जाएगा, एक ये भी बन जाएगा, खुदा से। हाँ, मे भी हो सकता है। ओके मैम, सो नेक्स्ट बुक मैम आप कब रिलीज कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं हूं नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। वो जब देगा उस टाइम होगा, क्योंकि मेरे लिए सब अनएक्सपेक्टेड है, तो सब उसके हाथ में है, जब भी आएगा सामने आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं मैम हमें जल्दी आपकी नेक्स्ट बुक भी हाथ में मिले। एंड व्यूअर्स, बस वंस अगेन मिदुआ अमेज़न पे अवेलेबल है, प्लीज गो एंड ग्रैब योर कॉपीज एंड यस लिसन टू मैम सॉन्ग्स आल्सो। we'll soon share it up in our story and in our links we'll share that. And thank you so much ma'am for taking out time this Saturday evening. My pleasure, थैंक यू। आपसे मिली मैम एंड आपको देख पाई। आप सेशन कंप्लीट होने के बाद सेशन देखिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच तन्वी, थैंक यू सो मच। My थैंक pleasure, यू एवरीवन। ma'am. थैंक यू। Yes, thank you everyone. Take care, ma'am. Happy थैंक यू। weekend and happy Sharad Purnima to everyone. Bye थैंक bye. यू, सेम टू यू। बाय। Bye, ma'am. Bye. बाय बेटा।